सबसे पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट राना इंतज़ार हुसैन, प्रेसिडेंट लाहौर बार, ज़िशान अहमद मलिक, who is just like younger brother. They had the thought कि जो लीगल एजुकेशन है that should be according to standard, because while discussing on the different issues they have always been of the conscious of the fact that the quality is not being produced, whether that is from our side or from the lawyer side. I remember when Rana Intizar sir was president, he was chairman legal education committee. He also played his role for the betterment of legal education. When he addressed letter to the Honorable Chief Justice, he immediately approved the request because the Honorable Chief Justice is also conscious of the fact, and he takes very serious that our new lawyers, they should have competence, because with the passage of time and with the mushroom growth of the law colleges, especially evening sessions, all of us witnessed that quality has deteriorated. No, the situation has changed. You people have come after doing 5 years program perhaps, because after intermediate when you join a profession, you join it as a profession. ये नहीं हुआ कि जैसे पहले होता था किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हुआ तो लॉ में ले लें जी, कुछ नहीं किया चलो जी लॉ कर लो, ठीक है। फिर वक्त के साथ जब बार सिचुएशन चेंज हुई तो जिनके ज़ाती प्रॉपर्टी इश्यूज थे, माफिया है, ट्रेड एसोसिएशन है, व्हाट्सएप, उन्होंने कहा चलो यार अपने बच्चे को वकील बना लें। क्योंकि वकील बनना बहुत आसान था, वकील यानी कि लॉ की डिग्री लेना। लेकिन अब चूंकि सीरियस प्रोफेशन हो गया, एंड आई एक्सपेक्ट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बेहतरी आएगी। सो दिस विल नॉट बी ए लेक्चर, दिस विल बी इंटरैक्टिव सेशन। फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज द रिसर्च सेंटर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। There is a research center at Lahore High Court where 9 civil judges, first class, are working as a research officers who assist the honorable judges of Lahore High Court. 2 are at Multan bench, 2 Pindi bench, and 2 at Bahawalpur bench. And I am heading them as a senior research officer, as a supervisory officer. So I will be sharing my experience and keeping in view the fact that you people are new entrant in law. I will prefer to give you the sources that you don't spend even a single penny. You don't need to buy any law site. You don't need to buy even law journal. And without buying anything, without spending even a single penny, you can make a legal research. And you can make a better legal research. Because when you join the profession, this is very, up to some extent, I must say, Zishan Sahab, this is a ruthless profession. Your senior will not share his pocket, and even sometimes, rather most of the time, he will not share his brain, he will not share his research. This is the hard reality. There are very, very few people like Zishan, very few. Otherwise they would not like to share their even knowledge. And as we all used to hear that the knowledge is power, and how to gain that power, I'll try. At the conclusion of the session, you should be confident enough that you must be knowing from the practicing advocates who have been practicing for so many years, because I'll share with you that how we work in the High Court. Zishan is just like younger brother, and one thing I would like to share that his father was my teacher. When I joined as a civil judge and I went to Federal Judicial Academy for training, his father was director there. And at that time, Zishan was in graduation. So let's start. One more thing, whatever you have in your mind, don't feel hesitation. Don't think that someone would laugh कि क्या question कर रही है. Don't feel shy. If you feel shy, you feel hesitation, you cannot learn. There may be, you might think that यार ये पूछेंगे तो दूसरा हंसेगा. कोई बात नहीं हंसने का. लर्निंग प्रोसेस है ना, सीख के कोई पैदा नहीं होता, ठीक है. So be confident. I'll start. Anybody would like to define what is legal research? Anybody?
आप स्टूडेंट्स अभी चूँकि आप 5 साल का लॉ करके हैं, ऑफ कोर्स एक क्वालिटी अच्छे डिफरेंट कॉलेजेस से होंगे आप। किसी भी लॉ को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना, डिफरेंट एग्जैक्टली उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना। फिर ये देखना, आप ये देखें ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, एक ही केस है, उसमें प्लेंटिफ का वकील भी है, डिफेंडेंट का भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, डिफेंस भी है, वो भी जजमेंट्स देंगे, वो भी जजमेंट्स देंगे, ठीक है ना। आपको दोनों तरफ के जजमेंट्स मिलेंगे, तो फिर यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यार ये मुझे फेवर करती है कि ये तो मेरे खिलाफ है। अगर आपके खिलाफ है तो हाउ वुड यू काउंटर दैट? ये डिफरेंट चीज़ें हैं। सो लीगल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन आंसर टू अ लीगल क्वेश्चन, कि दिस इज अ लीगल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होना चाहिए। when you have to prepare an answer, you have to prepare a case from both sides, from prosecution, from defense, from plaintiff, from defendant. And there will be different stages in different cases, in different laws, rent laws, family laws. Achha, one thing, if you have any question in your mind, kindly raise your hands. Frankly speaking, I firstly said this is not a lecture, this is just an interactive session, and I will share with you what is the purpose of today's. Of course, you have to understanding the concept of online legal research. I remember when I graduated law or I joined service, there was no concept of online legal research. There was no WhatsApp. There was no law site available. Even there was no internet connection. Even there was no Android phone, which you all people have, and you people have. You are lucky enough that most of the people have phone, of course. At the conclusion of the session, I expect कि जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, that is not only for Facebook, for Instagram, for TikTok, or these things. You have wonderful research tool in your hand. Wonderful research tool. Provided if you have interest. If you just have to see funny videos on TikTok or social media, then that's your choice. But if you want to get legal competence, you have sufficient. आपको ये नहीं बस आप जाएंगे कि जी मेरे पास लॉ कनेक्शन नहीं है, लॉ साइट नहीं है, पाकिस्तान लॉ साइट नहीं है जी मेरे पास. नो डाउट दैट इज़ एन ईजी साइट, बट आई must recommend, I must suggest that you even don't need to buy that. क्योंकि हम जब when we start working, firstly we see because of our lethargic attitude कि ये हैंडीकैप है जी मेरे पास तो ये नहीं है. कोई ऐसा यहाँ पे सेशन में बैठा छोटा भाई बहन ऐसी है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना हो? एनीवन जिसके पास आप भी कोई पुराना 3310 टाइप हो? एनीवन? सबके पास है. मीनिंग देयर बाय कि यू हैव टूल ऑफ रिसर्च एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. You don't need to buy anything, so you don't need to blame anyone. So you are to start from yourself. Online legal research, getting familiarity with the local and international sources. And you might be thinking कि हमने इंटरनेशनल सोर्स क्या करना है. हो सकता है आपके जहन में हो यार पाकिस्तान में प्रैक्टिस करनी है, लाहौर में करनी है, किसी तहसील में करनी है, तो मैंने कनाडा की जजमेंट पढ़ के क्या करनी है. लेकिन आप जब हम डेवलप करेंगे, देखें एक चीज़ हम शुरू से सुनते आए थे कि इल्म किसी की मिरास नहीं. इट इज़ नॉट ओनरशिप ऑफ समवन, एंड इफ़ समवन क्लेम्स प्रोफिशंसी कि उसको सब आता है, तो उस पर फिर इल्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं. बल्कि मैं आप ही के प्रोग्राम में देख रहा, एक साहब ने बड़ा अच्छा मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर पढ़ा था. तो आपने फोकस करना है. नेक्स्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी. कोई भी क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले आपने रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करनी है. जैसे हम लोग करते हैं, कौन सा पॉइंट है जो बिगिनिंग पॉइंट होगा सबसे पहले? That will be statute.
बिकॉज इट हैज़ फोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहले आपके पास फैमिली केस आया है, गार्डियन है, पार्टनरशिप पार्टीशन का आया है, सपोज पार्टीशन का आया, तो अब अगर आपको नहीं पता तो आपने वो देखना है कि कौन सा लॉ पढ़ना है, पार्टीशन एक्ट पढ़ना है। आपके पास रेंट का आ गया है, कोई बंदा आ गया है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है लॉ की फील्ड की चीज़ ना, जब नए नए वकील बनते हैं ना तो आपके दाएं बाएं अच्छा नज़दीक हो जाए। अच्छा, जब अब नए नए वकील बनते हैं ना, मैंने भी एक्सपीरियंस किया और ज़िशान ने भी किया होगा कि हर बंदा ना आके आपसे मशवरा करेगा, फैमिली वाले, हमसाए, दोस्त, मशवरे के बाद कहेंगे यार कोई चंगा जा वकील दस। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये है कि अगर आप इस सारी हम एपिसोड जो करते हैं, आई डोंट क्लेम कि आपको बहुत कुछ बताएंगे जितना। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं कि हमने लास्ट ईयर से हाई कोर्ट में शुरू किया कि जो सिविल जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नया इंडक्ट होगा, ये मौजूदा चीफ साहब की अप्रूवल थी और उनकी काविश थी, वो 2 वीक्स ही विल बी अटैच्ड विद द रिसर्च सेंटर। तो 2 वीक्स जो हमने अपने जजेस को रिसर्च सिखाते हैं वो आई हैव टू कवर विद इन 1.5 आवर। तो आई विल गोइंग रैपिडली, तो आपने अपने आप को फ्रेश रखना है। स्टैचूट सर, सबसे पहले तो आपने देखना स्टैचूट क्या है, लॉ क्या है। अच्छा वकील या जज ये नहीं है कि उसको सारे लॉ आते हैं, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लॉज। अ गुड लॉयर, अ गुड रिसर्चर इज दैट ही नोज वेयर द लॉ इज, हाउ टू फाइंड द लॉ। और अब तो आपके लिए इतनी आसानी हो गई, आई विल शो यू कि देयर आर सो मैनी सर्च इंजन्स। अब तो एआई का दौर आ रहा है। स्टैचूट सर्च के बाद आपने स्टैचूट देख लिया, द नेक्स्ट स्टेप विल बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम आगे टच करेंगे डिटेल के साथ कि प्रेसिडेंट क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हम देखेंगे स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 स्टैचूट है, प्रेसिडेंट्स हैं, डिक्शनरी। अब आप सोच रहे होंगे आप वकील बन गया, आपने डिक्शनरी क्या करनी है, आपने कोई अंग्रेज़ी तो सीखनी नहीं है। सो व्हाट इज़ पर्पस ऑफ डिक्शनरी, आपके जहन में आया कि नहीं आया? देखिए समटाइम्स ऐसा होता है, चलिए अभी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बुक सर्च एंड आर्टिकल सर्च, कि आपने बुक्स को कैसे सर्च करना है, कौन कौन सी बुक्स सर्च करनी है, कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अच्छा, समटाइम्स आपके जहन में आएगा यार ये बुक मैंने पढ़ के क्या करनी। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी बुक पढ़ेंगे, आप में से कुछ किसने उर्दू नावल पढ़े होंगे, किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, जिसने चाहे पंजाबी पढ़ा हो, तो क्या वो आपकी राइटिंग पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी थॉट्स पे असर नहीं रखता? तो ये डिपेंड करता, कोई भी चीज़ पढ़ो, इट अफेक्ट्स। गूगल सर्च, समटाइम्स even we get support from Google, even we get search from YouTube। suppose आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई क्लू नहीं मिल रहा, गो टू गूगल। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा कि अब गूगल से कैसे मैं आप तो चूँकि 2007 में तो आप लोग बच्चे होंगे शायद, 12 मई 2007 को इफ्तिखार चौधरी साहब कराची गए। वहाँ पे काफ़ी सारे वकीलों का एक बड़ा सान्या हुआ था, काफ़ी सारे वकीलों की डेथ हुई थी। कोई थोड़ा बहुत जेल में होगा सोशल मीडिया से, निशान आपको तो जारी बात है। वो चूँकि पुराना वाक़या बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी गूगल से रेलेवेंस है कि व्हेन यू मेक रिसर्च। अब क्वेश्चन है कि 2007 का अक्रंस है, क्वेरी आई हमें कि इस पे एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है। आजकल भी आप JIT का टीवी पे बड़ा सुनते होंगे, तो एक JIT बनी थी, उस पर जजमेंट थी, वो दे दें। अब मैं आपको थोड़ा सा, अब वो 2007 की है, तो जब आप रिसर्च शुरू करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? अक्रंस 2007 का है ना, तो जब आप रिसर्च शुरू करेंगे कहाँ से करेंगे? बोल रहे हैं
2007 से। अब हमने किया 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10 किया। आफ्टर सर्चिंग फॉर 4 years वी कुड नॉट फाइंड दैट। अल्टीमेटली हमने गूगल में आए। अब ये देखें, गूगल में टाइप किया, जब नहीं मिल रही तो 12 मई JIT 2007, तो अरे कहीं ना कहीं से रिसर्च करनी है ना, तो रिसर्च करते हुए अपने सारे मॉड्यूल्स यूज़ करना है। तो इसने न्यूज़ मुझे दी, ये JIT की। अब ये देखें न्यूज़ किस दिन की है, 11 सितंबर 2018, आफ्टर 11 years ऑफ द अकरेंस। सो गूगल सेव्ड माई 11 years। तो मैंने उसके बाद से रिसर्च शुरू की और वी फाइंड आउट जजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू बिकम जज और यू आर ए लॉयर, ऑलवेज रिलाई ऑन द लेटेस्ट लेजिस्लेशन। अभी आप सोशल मीडिया पे बहुत सुन रहे होंगे, कोई फेसबुक पे शेयर कर देगा कि पिछले दिनों एक बड़ा चला था कि इंसदाद इंतहा पसंदी एक्ट आ गया, टीवी पे उसकी स्पीच हो गई, एंकर ने भी उस पर शुरू किया, न्यूज़पेपर में आ गया। तो देखें, देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ लेमैन। व्हेन यू टॉक अबाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट, एनी लीगल इनैक्टमेंट, डोंट टॉक अबाउट इट अनलेस यू हैव रेड योरसेल्फ। जब तक आपने खुद नहीं पढ़ा, देखें पहले बिल जाए नेशनल असेंबली में, फिर वो सेनेट में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसकी अप्रूवल होगी, देन इट विल बिकम लॉ। अब प्रैक्टिकली एक हुआ, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप में से किसी जजेस भी बनेंगे, वकील भी बनेंगे। आप देखें ना, अगर आप गलत लॉ एज ए लॉयर कोर्ट में दे देते हैं और वो लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, तो सोचे कितनी एम्बैरेसमेंट होगी आप। One of the senior judges convicted and accused for anti-corruption laws for 10 years, despite the fact that the punishment provided in that act was for 7 years. लेकिन उन्होंने 10 साल सजा दे दी। The matter was taken up before High Court. तो जब सारा dig out किया गया, तो the honorable judge said that it was provided by his prosecutor that amendment had been made, कि जो 7 साल से वो 10 साल हो गए। जब उनसे वो अमेंडमेंट मंगवाई गई, that was just bill of national assembly, that was not even approved by the senate, what to speak of the president। तो जब भी कोई लॉ कोट करें, यू मस्ट बी श्योर कि ये लॉ एग्जिस्ट करता है। हियर से मीडिया न्यूज़, सोशल मीडिया शेयरिंग इन द व्हाट्सएप ग्रुप, कभी उस पर रिलाई ना करें, कभी उस पर ट्रस्ट ना करें, जब तक कि आपने वो लेजिस्लेशन खुद नहीं पढ़ ली। प्रेसिडेंट सुना आपने, प्रैक्टिस की है, जब आप लॉ कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में सुना होगा। कोई बताएगा प्रेसिडेंट क्या होता है? एनीबॉडी? नॉर्मल जजमेंट होती है। अच्छा जी, जजमेंट लॉ जी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेड जजमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान लॉ साइड में PLD, CLC, SCMR में प्रिंट होगी तो प्रेसिडेंट होगा। वो तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज गिविंग यू अ सोर्स, बट लॉ इज देयर, प्रेसिडेंट इज देयर। जो किसी लॉ जर्नल में प्रेसिडेंट नहीं आया, दैट इज इक्वली हैज़ द बाइंडिंग इफेक्ट एज अ रिपोर्टेड जजमेंट। आपको कन्वीनियंस होती है जी, PLD फलाना है, SCMR फलाना है, ठीक है, दैट इज मिसकंसेप्शन। आपने जजमेंट अगर पढ़ी है, दैट हैज़। अच्छा, एक होती है ऑर्डिनरी जजमेंट, प्रेसिडेंट है, परसुएसिव है। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो निशान साहब आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा, फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट मिल गई, अब इधर की भी मिल गई। अब जो भी जज है वो सर पकड़ के बैठ गया, यार मैं इधर फैसला करूँ कि उधर करूँ, ठीक है। आपने उस माइंड से सोच के केस की तैयारी करनी है। क्यों? कि अगर आप उसके मुताबिक करेंगे तो आप दूसरे को भी देखेंगे एंड डेफिनेटली यू विल प्रिवेल।
क्योंकि आपकी रिसर्च अपडेटेड हो गई। अब प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट डेफिनेटली जजमेंट लॉ है, जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, और उस प्रेसिडेंट का बाइंडिंग इफेक्ट भी होता है, सबका ही है, विच डिसाइड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। उसने कोई लॉ सेटल किया। अब देखें ना, इनका केस है, बेल खारिज हो गई है, सेम फैक्ट्स हैं, इनका केस है, बेल डिसमिस अलाउ हो गई है, तो डेट इज नॉट ए प्रेसिडेंट, डेट इज ए ऑर्डर। ठीक है, वो ऑर्डर उस कोर्ट पे तो नीचे बाइंडिंग है, लेकिन जब हम किसी प्रेसिडेंट को एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल लेना है तो वी हैव टू सी कि क्या प्रिंसिपल ले डाउन हुआ उसमें। अच्छा, प्रेसिडेंट, अब देखें, जब शुरू में हमने डिस्कस किया कि जब आपने लेजिस्लेशन पढ़ ले तो वाई प्रेसिडेंट, क्या ज़रूरत है? ठीक है जी, कानून है, इसके मुताबिक फैसला करें जी, मेरा बनता है। अब कैसे बनता है और कैसे बनते और ना बनते की एक चीज़ मैं आपको बताऊं। प्रेसिडेंट बैठे हुए थे अभी लाहौर बार के। आई हैव बिन सर्विंग फॉर द लास्ट 19 ईयर्स। मैंने नहीं कभी सुना कि ज़िशान साहब की लड़ाई हुई है कोर्ट में, वरना आप प्रैक्टिकली टीवी पे ये होना कि फलां जज से लड़ाई होगी, फलां कोर्ट में लड़ाई होगी। लड़ाई शुरू वहाँ होती है जहाँ दलील ख़त्म होती है, और ये सिर्फ एक एंड पे नहीं है। हो सकता आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो, जज साहब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, या उनकी अंडरस्टैंडिंग हो आपके जी जज का तो अख्तियार है, कर दे। अक्सर जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, नहीं नहीं जनाब का बड़ा अख्तियार है, जनाब मेहरबानी कर दें। डोंट बैग, प्लीड योर केस, डोंट से टू द कोर्ट सर मेहरबानी कर दें, सर मेहरबानी कर दें, जनाब का बड़ा अख्तियार है। प्लीड योर केस, कन्विंस द कोर्ट, और वो आप तभी कर सकते हैं इफ़ यू नो द लॉ। आप अपने लीगल रिसर्च के ज़रिए जज को भी पाबंद करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो आपको रिलीफ दे। इम्पोर्टेंस की बात है, वी एग्जामिन द रेलेवेंसी, कि क्या जो प्रेसिडेंट पे आपको रिलाई कर रहा है, क्या वो आपके केस के फैक्ट के साथ रेलेवेंट भी है कि नहीं। ये नहीं कि जी ठीक है इसमें 2 लाइनें लिखी हैं, हेडर नोट पढ़ा आपने, ऐसी बात नहीं। यू हैव टू शो द रेलेवेंसी कि क्या वो आपके केस के साथ रेलेवेंट हैं कि नहीं हैं। इवन वाइल वर्किंग एज ए सिविल जज एंड एडिशनल सेशन जज हियर एट लाहौर, आई एक्सपीरियंस्ड कि कई वकील आके माशाल्लाह अपने खिलाफ ही जजमेंट दे जाते थे, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, एक सिविल केस था, तो आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या होना चाहिए। तो मज़े की बात यह है कि जो आर्गू कर रहे थे, हु वांटेड रिलीफ, उन्होंने मुझे जजमेंट दी और अपने खिलाफ लेके चले गए, तो उन्होंने मेरे लिए डिसीजन आसान कर दिया। देयर बाइंडिंग इफेक्ट है। वी चेक द हायरार्की। हायरार्की आपने देखनी है जब प्रेसिडेंट को एवेल्यूएट करना है कि ये हाई कोर्ट की है कि सुप्रीम कोर्ट की है। ये ना हो कि एक बंदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसी फैक्ट्स पे, उस पर लॉ पे लेके आ रहा है, आप कह जी मेरे पास हाई कोर्ट की जजमेंट, उसका क्या फ़ायदा। फिर जब आप प्रेसिडेंट को एवेल्यूएट करते हैं तो उस पर एक है सिंगल जज, एक जज की जजमेंट हाई कोर्ट की। दूसरी साइड पे दूसरा जो वकील ले आता है वो डिवीजन बेंच की जजमेंट है, 2 जजेस की है। तो जो 2 जजेस की डिवीजन बेंच की जजमेंट है, डेट विल बी हैविंग द बाइंडिंग इफेक्ट। आपने लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, सपोज 7 रुकनी बेंच है, उसकी जजमेंट आपको मिल गई भी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 7 जजेस ने डिसाइड की। तो अब दूसरी तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट की आपको एक, वहाँ तो होता है डिवीजन बेंच है ना, एक जजमेंट मिल गई है जो इस व्यू से डिफरेंट है, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट की प्रिवेल करेगी। इसी तरह जब आप एवेल्यूएट करना है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की जजमेंट है और 3 का व्यू डिफरेंट जजमेंट है, तो 3 का प्रिवेल करेगा। और अगर कंट्राडिक्टरी जजमेंट हैं और नंबर ऑफ जजेस सेम है, तो लेटर इन टाइम शैल प्रिवेल। लेकिन लॉ ये है, लॉ प्रेसिडेंट ये कहता है कि अगर
लेटर बेंच ने, सब्सिक्वेंट बेंच ने डिफरेंट ओपिनियन लेना है फ्रॉम द अर्लियर बेंच, तो रिकमेंड करना चाहिए कि लार्जर बेंच बने, उसको डिविएट नहीं कर सकते। conflicting views, we look at which is to follow, directions। अच्छा, ये इसको पॉलिटिकल नहीं लेना है, इस स्लाइड को बिल्कुल भी, ये सिर्फ एग्जांपल्स के लिए है, क्योंकि ये पहले की स्लाइड्स लाई थी, कुछ लोगों ने इतराज़ किया था, मैं कहा यार दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल, दिस इज लीगल। जब भी कोई स्टैट्यूट पढ़े, जब भी कोई स्टैट्यूट हो आपने पढ़ना है, प्रॉब्लम ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर आप वकील भी हैं, अगर सेक्शन 8 और 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का केस आ गया ना, तो आप बस सीधा 8 और 9 पढ़ेंगे कि जी मैंने स्टैट्यूट पढ़ लिया। दिस इज नॉट सो। एक तो लॉ का अक्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है, और दूसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ 99% मिसिंग बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, कि लॉ का प्रीएम्बल नहीं पढ़ते। आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है, जब आपने लीगल रिसर्च करनी है ना, सबसे पहले उसको प्रीएम्बल पढ़ें। अब 50 सेक्शन पढ़ लें, आपकी वो विजडम डेवलप नहीं होगी कि जब तक ने आपने 3 से 4 लाइनों का प्रीएम्बल नहीं पढ़ा होगा। अब प्रीएम्बल क्या होता है? वो होता है कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, ये कानून क्यों आया, किस लिए बनाया, इसका क्या पर्पस था। इवन देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉजेस होती है ना, जहां पे कोर्ट स्टक हो जाती है, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टक हो जाते हैं कि कैसे इसको इंटरप्रेट करें, इसका क्या पर्पस था। तो वी गेट सपोर्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल कि लेजिस्लेचर की इंटेंशन ये थी, इस सिचुएशन में ये लॉ बना। जैसे सपोज है, जैसे आजकल मिलिट्री कोर्ट्स का इशू चल रहा है। जब एपीएस का वाकया हुआ था, पेशावर में बच्चे मरे थे, उस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट चली थी, वैलिडेट भी हुई, ट्रायल भी हुए, तो उसका प्रीएम्बल पढ़ें। और अब अगर कोई नया लॉ आता है, उसका प्रीएम्बल पढ़ें कि असल पर्पस क्या है। देखिए, हमने उसको इल मोटिवेटेड पर्पस में नहीं जाना कि जी ये हो गया वो हो गया। जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसका प्रीएम्बल देखें कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, व्हाट ही वांटेड टू क्रिएट, व्हाई दैट लॉ वाज क्रिएटेड। जब ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप उस सेक्शन को बेहतर इंटरप्रेट कर सकेंगे। जैसे आप जाते हैं, पार्टीशन एक्ट है, प्रीएम्बल कहेगा कि जल्दी फैसला होना चाहिए, रेंट स्पेशल कोड बनी कि जल्दी फैसला होना चाहिए। इफ़ यू इंटरप्रेट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि पर्पस क्या है। अब बैकग्राउंड की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। जजेस आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग है ना हम सब। लीगल एजुकेशन सबकी डिफरेंट है, किसी ने लिटरेचर पढ़ा होगा, किसी ने पंजाबी पढ़ी होगी, किसी ने कंप्यूटर पढ़ा होगा। तो व्हेन यू राइट समथिंग, तो आपका जो लीगल एजुकेशन या लीगल एजुकेशनल बैकग्राउंड है, दैट काउंट्स, दैट गिव्स यू थॉट्स। जब भी कोई प्रेसिडेंट पढ़े, उसमें आप किसी नॉवल का जिक्र पढ़ें, किसी ड्रामे का जिक्र सुने, जूलियस सीजर है, हैमलेट है, शेक्सपियर है, कोई भी पढ़े, तो आई वुड रिकमेंड कि बिफोर रीडिंग दैट जजमेंट आप वो पढ़ें कि वो क्या है। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो इट विल गिव यू माइंड ऑफ द जज कि ये जजमेंट डिलीवर करते हुए उसके जेहन में ये है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज अगेन आई रिपीटेड कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल। पनामा केस फैसला आया, उसमें लफ्ज़ गॉडफादर इस्तेमाल हुआ। आप में से कितने लोगों ने गॉडफादर मूवी देखी? मैंने भी उस जजमेंट के बाद देखी थी, ठीक है। गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, ये सारे आए ना, तो उस वक्त देखा कि जजेस की परसेप्शन क्या थी, कि वो उस नॉवल में जो होता था कि एक सोसाइटी में बंदे हावी हो गए हैं ड्यू टू देयर वेल्थ, वॉट एवर दे हैड, देयर पावर, एंड दे वर अनटचेबल्स। तो इस जजमेंट को आपने अगर एंजॉय करना है तो पहले आप गॉडफादर पढ़ो, ठीक है, देन यू विल एंजॉय। परसेप्शन मे बी राइट और रॉन्ग, आई कैन नॉट से इट, ठीक है। एक पिछले दिनों, खैर अब तो पुरानी बात हो गई,
जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, वहाँ पे कोई स्लैंग इस्तेमाल होता है, टर्म्स इस्तेमाल होती है, हम उसको ना फोकस नहीं करते। ठीक है, अभी पिछले दिनों जब 1.5 साल से जो पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में चल रही है, उसमें एक टर्म नो कॉन्फिडेंस आई, मजमे में कहा गया कि जनाब ये 3 स्टूजेस क्या मेरी गवर्नमेंट गिराएंगे। सुना होगा सबने, अगर जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है सुनते हैं, 3 स्टूजेस, टी स्टूजेस। अब सब आई डोंट थिंक कि बहुत कम लोग, अच्छा एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है या व्हाट्सएवर, आप उसको लीडर समझिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, कि एक बंदा यूज़ किए जा रहा है कि क्या चीज़ है। तो जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा डेट वाज कॉमेडी कैरेक्टर्स। तो उससे आपको उस बंदे का विजन का आइडिया हो जाएगा। देखिए मैं आपको लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एक डिफरेंट स्लैंग यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको उसका पता होगा, यू कैन रीड माई माइंड। तो कोई भी जजमेंट पढ़ें, उसमें इस तरह का कोई नॉवल है, कोई कोटेशन है, कोई मूवी का जिक्र है, तो उसको ज़रूर देखें, तो डेट विल गिव यू क्लियर परसेप्शन। अच्छा, अब आ रही थी प्रेसिडेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रेसिडेंट भी ढूंढ लिए, मैं आप थोड़ा सा रैपिडली करूँगा कोई चीज़ें। स्टेबिलिटी, आप ऐसे जब तक चाहें कि नहीं अगला लेक्चर नहीं होगा, जो हालात है एक लेक्चर ही आज हम करेंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टेबिलिटी ऑफ लॉ, कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल हो गया तो लॉ को स्टेबल कर रहा है। प्रिडिक्टेबली, भाई अगर मुझे पता है कि मेरा केस खारिज ही होना है, प्रेसिडेंट मौजूद है, तो आई कैन प्रिडिक्ट माई केस इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द जज। आई कैन प्रिडिक्ट माई केस। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सेकंड FIR हो जाती थी, थर्ड FIR हो जाती थी, कोई सेटल लॉ नहीं था। 2018 में एक सुगरा बीबी केस आया, उन्होंने सेटल कर दिया कि सेकंड FIR नहीं हो सकती, तो प्रेडिक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ 22 से 22B का वकील पिटीशन फाइल करते हैं, जज कहता है नहीं इस पर सेकंड FIR नहीं हो सकती। आप कहते हैं क्यों नहीं हो सकती? 22 से 22B कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मेरा पर्चा दो। तो यू कैन प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट। इंटेग्रिटी, ये कोर्ट्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। मैं उसी केस का हवाला दूंगा सुगरा बीबी को। उससे पहले क्या था, इन्होंने पिटीशन फाइल की तो मैंने पर्चे का ऑर्डर कर दिया, इन्होंने फाइल की तो मैंने खारिज कर दी, तो मेरी इंटेग्रिटी क्या रहेगी? वो कहे ये तो कोई नहीं जी, उसको दे दिया रिलीफ, मुझे नहीं दिया। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट, जो फोर्स ऑफ लॉ है, वो कोर्ट्स की इंटेग्रिटी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। Constitutional provisions under Article 189, decision of the Supreme Court are binding on all the courts in Pakistan. जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया that is binding on all the courts. And under Article 201, whatever is decided, whatever precedent is established by High Court, that is binding on the subordinate courts. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ, we are working in पंजाब। लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट्स बाइंडिंग है हम पे, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स परसुएसिव है, आपको नॉलेज दे सकती हैं, आप परसुएड कर सकते हैं, बट डैट उसको बाइंडिंग इफेक्ट नहीं कहा जा सकता। अच्छा, हॉरिजेंटल प्रेसिडेंट, हॉरिजेंटल होता है बिटवीन द सेम हायरार्की। मैंने पहले भी जिक्र किया, हाई कोर्ट के 2 जजेस का फैसला है, फिर 2 जजेस का फैसला है, तो सेम फॉलो होगा। उसके बाद 3 जजेस का फैसला आ गया। अभी पिछले दिनों एक फैमिली केस था, उस पर ट्रांसफ़र ऑफ डिग्री का एक इशू था, उस पर पहले एक जज साहब का फैसला है, फिर DB का फैसला आया, फिर लार्जर बेंच का फैसला आया, और इत्तेफाक है कि जो डिवीज़न बेंच का फैसला था वो, और लार्जर बेंच का, डिवीज़न बेंच लाहौर बैठा था, लार्जर बेंच पिंडी बैठा था, एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ था, दोनों के कंट्राडिक्टरी डिफरेंट जजमेंट्स आ गए एक ही दिन में, विद अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर। ठीक है, अब हॉरिजेंटल है,
तो आपने किसको फॉलो करना है? डेफिनेटली लार्जर बेंच को। वर्टिकल हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का फॉलो करना है। क्लैरिटी है यहाँ तक जी? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये मैंने खुद स्लाइड बनाई है, ऐसा प्रेसिडेंट एग्जिस्ट कोई नहीं करता, लेकिन आजकल हमारे स्टूडेंट्स, लॉयर्स, जजेस 70-80% इस पे चलते हैं। अब हेयर से प्रेसिडेंट क्या होता है, कोई बताएगा? सुनी सुनाई बात जी आप। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं ज़हन में आ गई कि जब आप टीवी सुन रहे होते हैं ना, टिक्कर जो चल रहे होते हैं ना, ये कह दिया कोर्ट ने, ये कह दिया, डोंट ट्रस्ट, because the person who is reporting, he is not law graduate, he may not have understanding of the legal law। अब वो एक रूटीन में डिस्कशन हो रहा है, कोई बात हो रही है, आपने जब भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कोई चीज़ कोट करनी है, डोंट कोट अनलेस यू रीड योरसेल्फ। मैंने आपको बताया डोंट ट्रस्ट में। एक बड़ा सोशल मीडिया पे चला कि जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जहां साहब कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि अगर कोई खातून अपनी ज़िंदगी में इनहेरिटेंस क्लेम नहीं करती तो उसके वर्सा नहीं कर सकते। बाद में फेसबुक पे आई, न्यूज़ में आ गए, उस पर एक टीवी शो हो गया, तो मैंने ढूंढी, हमें डायरेक्शन भी थी, जब नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट राब्ता किया एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट द जजमेंट वाज नॉट इवन येट रिटन। सो आई हैड to contact the person who conducted the TV show, and when I asked him that from where you got this information, he said that I asked, did you read that judgment? He said, no. Okay, then how did you do that? How did you conduct a TV show? Okay, I discussed with judge sir. So here से प्रेसिडेंट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि जी ये फैसला हो गया, ये कानून आ गया, डोंट ट्रस्ट unless you read yourself, otherwise आपको इंतहाई एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। सुनी सुनाए प्रेसिडेंट पे भी चलना आपने। अच्छा, ये कैटेगरीज हैं लॉ साइट की, डिफरेंट होती है। एक फ़ी बेस्ड है कि आप पैसे देते हैं, पाकिस्तान लॉ साइट ले लेते हैं, ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, दिस नॉट नेसेसरी टू राइट। सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, आप लाहौर बार के मेंबर हैं, लाहौर बार ने पाकिस्तान लॉ साइट से एग्रीमेंट करके कनेक्शन ले लिया, उन्होंने आपको भी दे दिया है, तो वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा फ्री बेस्ड, जिसमें आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे यूजली ये हम लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान लॉ साइट, PLJ लॉ साइट है, पंजाब बार काउंसिल की है, ईस्ट लॉ है, लॉ फाइंडर है। लॉ फाइंडर हमारे पास है हाई कोर्ट में, लेकिन 2017 तक है, और इसमें इंडियन जजमेंट्स हम ढूंढते हैं। कॉमनली यूज्ड तकरीबन हर वकील, हर जज यूज़ करता है, दैट इज पाकिस्तान लॉ साइट। ईजी है, इसमें आप ये देखें, केस लॉ सर्च, एडवांस सर्च, स्टैचूट सर्च, कोर्ट वाइज सर्च, साइटेशन, आर्टिकल्स, डिक्शनरी, इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इवन अगर किसी की जजमेंट ढूंढनी है, ये देखिए सबसे नीचे लॉयर्स, जजेस, आर्टिकल्स, आप इवन लॉयर के नाम की भी जजमेंट ढूंढ सकते हैं। तो मैं वैसे चेक कर रहा था, जिशान का भी केस है इसमें। तो जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं, स्पेशली जब कोई लॉयर्स का नाम एलिवेशन के लिए कंसिडर होता है, तो फिर यहाँ से भी उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि उसके कौन कौन से केस रिपोर्ट है। ये है पेड लॉ साइट। अच्छा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान लॉ साइट में आपको बता रहा था, केस लॉ सर्च है, एडवांस सर्च है। जब आप खुद यूज़ करेंगे ना, तो कोई भी, जब आप लॉ साइट यूज़ करें, कोई भी साइट यूज़ करें, तो उसकी जितने टैब्स हैं, जितने उसके बुलेट्स बने, उनको टच करके देखें, उसमें से आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी। अब चूँकि वो नेट नहीं चला, तो मैं उसको प्रैक्टिकली, चूँकि टाइम भी थोड़ा है, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान लॉ साइट ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, लेकिन अगेन डैट पेड है। अपने शायद 4000 पर मंथ होगा, ठीक है ना। तो जब आप नए नए वकील बन के जाएंगे, तो आप तो दिन में 400 भी नहीं कमाएंगे। नहीं, ये हार्ड रियलिटी है। तो इसलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ईस्ट लॉ है, ये भी पेड है। लॉ फाइंडर है,
ये इंडियन है, ये इंपोर्ट होती है, सिर्फ हाई कोर्ट में मौजूद है। अदर फ्री ऑनलाइन सोर्सेस, आई विल बी फोकसिंग ऑन द फ्री ऑनलाइन सोर्सेस। किसी भी इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, केपी के हाई कोर्ट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोई भी ऑफिस है, किसी जगह का भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए, कुछ भी हो, उसकी लॉ साइट पे चले जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा, अब आपने लीगल रिसर्च इन 2 साइट से बाकी भी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सारी हाई कोर्ट्स जितनी हैं। अब आप ये देखें, आपको ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लिंक नज़र आ रहा है। अब ये आपके सामने हाई कोर्ट की वेबसाइट है, इसके डिफरेंट टैब्स हैं, अबाउट अस, बेंचेस, केस मैनेजमेंट, रिपोर्टेड, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, एडीआर, डिफरेंट है। अब हाई कोर्ट की वेबसाइट आपके सामने है, सबको क्लियर है? क्लियर है ना, सबको नज़र आ रहा है। अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टैब है ना, ये देखें, वो है ये रिसर्च सेंटर। आप देख रहे हैं रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर में जब आप जाएंगे, उसके डिफरेंट टैब्स आएंगे, टीम, इंट्रोडक्शन, व्हाटएवर। जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि फ्री रिसर्च आप कर सकते हैं, एक टैब आएगा उसमें बुलेटिन का, बुलेटिन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हम फोर्टनाइटली तैयार करते हैं। तो बुलेटिन में ना आपको 2020, 2021, 2022 और 2023 इसके आपको डिफरेंट फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। हम लोग बुलेटिन इशू करते हैं एवरी फोर्टनाइटली, हर 15 दिन बाद। लास्ट 15 डेज़ में जितनी जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की आई है, जितनी जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट की आई है, हम उनकी समरी बनाते हैं। मसलन अगर कोई एक 100 सफ़े की जजमेंट है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं 2 पेजेस में। आप सोचेंगे अब हम 200 सफ़े कौन पढ़ेंगे, तो अब ये 2 सफ़े पढ़ लें। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फैक्ट, कि व्हाट वाज द फैक्ट ऑफ द केस। उसके बाद हम उसके ना लीगल इशू फ्रेम करते हैं कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या इन्वॉल्व था, लीगल क्वेश्चन क्या था। जैसे सपोज आज की बात है कि क्या अक्यूज की हाजिरी थ्रू वीडियो हो सकती है क्या नहीं, क्या विटनेस की अटेंडेंस या विटनेस की एग्जामिनेशन और विटनेस वीडियो रिकॉर्डिंग पे हो सकता है क्या नहीं। एक एग्जांपल की बात कर, फिर उस पर हम आपको इश्यूज देंगे। इश्यूज़ के बाद मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इश्यूज़ के बाद उस पर ब्रीफ एनालिसिस होगा और उसके बाद कंक्लूजन होगा, जो ऊपर इशू फ्रेम किया है उसका नीचे जवाब होगा। दिस इज़ कंसोलिडेटेड बुलेटिन, कंसोलिडेटेड है 2021 का, 2022 का, 2 साल का एक डॉक्यूमेंट है। जब आप जाएंगे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे तो आपको ये 15-15 दिन के भी मिलेंगे। अभी आप ये देखें सिर्फ एक सैंपल के लिए, अब ये देखिए आपके सामने कोई भी एक जजमेंट आ गई है, क्लियर है जी। अब ये देखें हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब सबसे पहले हमने लिखी जी इस केस के फैक्ट्स क्या है। अब हमने 2 इशू फ्रेम किए, वेदर द पिटिशनर बीइंग क्लियर द डिसीज वाज, अच्छा, अब हमने उसका ब्रीफ एनालिसिस दिया और अब हमने उसका कंक्लूजन दे दिया। अब अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें, अपने लैपटॉप में रख लें, अब इससे आपने लीगल रिसर्च कैसे करनी है। आपने कंप्यूटर पे है शॉर्ट की, अगर मोबाइल पे जाएंगे तो सर्च का बार बनी होगी। मैं रैंडम लिख रहा हूँ। अब ये देखें मैंने टाइप किया जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मेरे पास केस आ गया, आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब आपने सोचा यार इस पर लेटेस्ट जजमेंट्स कौन कौन सी होंगी, सिर्फ एक टॉपिक पे आपने शॉर्ट की लगाया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये देखें ये डॉक्यूमेंट 2 साल का डॉक्यूमेंट है, 2 साल की जजमेंट्स हैं।
अब वो आपको लेके जा रहा है कि 180 दफ़ा यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यूज़ हुआ है लफ्ज़, आप क्लिक करते जाएं और आप इसको ब्रीफली देखते जाएं, जो जजमेंट आपके रेलेवेंट है, ये ऊपर लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इंटरनेट नहीं है यहाँ पे, आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली मेन जजमेंट पे चले जाएंगे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी, आप कहते हैं ना पाकिस्तान लॉ साइट, पाकिस्तान लॉ साइट में 3 से 4 माह पुरानी जजमेंट होती है। क्यों? कि जजमेंट पहले आई, फिर वो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग के बाद वो लॉ पब्लिशर के पास गई, उसने पहले अपने जर्नल में छापनी है, जा रहे उसने वो बेचना है, 2-3 महीने लग जाने हैं, फिर उसने ऑनलाइन देनी है। तो हमारे पास तो हम तो लेटेस्ट अपडेट करते रहते हैं। मतलब आज 5 अगस्त है, अगर आप जब हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो लास्ट बुलेटिन हमने अपलोड किया 1 अगस्त को, सिर्फ 3 दिन पहले का। तो वो आप लेटेस्ट लॉ उससे पढ़ सकते हैं, ना पूरी जजमेंट पढ़े। अगर आप 15 दिन बाद सिर्फ वो बुलेटिन ही पढ़ लें तो आई अश्योर यू कि सीनियर से सीनियर लॉयर भी और बड़ी से बड़ी कोर्ट भी आपको डिफीट नहीं कर सकते। क्यों? कि आपके पास लेटेस्ट लॉ है, जजमेंट है आपके पास। जब आपने उसको पढ़ा होगा और आपने प्रॉपर अप्लाई किया होगा तो नो वन कैन बीट यू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेट से कनेक्ट हो ही गया। जी जी बिल्कुल, आप उसको देखें। आप अच्छा, अब ये देखें ना, ये हाई कोर्ट की वेबसाइट है, शायद नेट आया अगर चल गया। ये देखें, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग बाय द सिटिंग जजेस, ये डिफरेंट टैब्स के जाएंगे। अब आप ये देखें, जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो लास्ट जजमेंट हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को अपलोड की है, तो आप डायरेक्टली ये जजमेंट पढ़े, परसों आई है। नहीं सर, वो प्रॉब्लम होती है यहाँ से अगर हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो अगर हम किसी भी कोर्ट में देते हैं तो कहते हैं ये तो रिपोर्टेड ही नहीं है, इसमें हेड नोट्स ही नहीं है। सर दिस इज मिसकंसेप्शन। लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि हेड नोट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट। मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है कि हेड नोट, तो हेड नोट क्या है, कौन बनाता है? हमारे जैसे नहीं, आप जैसे नहीं भी हैं, उनके जो लीगल क्लर्क्स बैठे हैं उसकी जितनी विजडम है उसके मुताबिक बनाते हैं। नहीं सर, ये जो पीएच वाले हेड नोट्स खुद बनाते हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, हेड नोट तो कभी भी रिलायबल नहीं है, चाहे वो पीएलजे है चाहे वो एससीएमआर है। अच्छा सर, ये जो बात है ना, ये आज से कुरान 10 साल पहले मेरे साथ एक दफा हुआ। सर तो मैंने भी ये किया था कि ऊपर एक सर्टिफिकेट दिया था, इट इज सर्टिफाइड एज दैट दिस जजमेंट हैज बीन डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, और नीचे मैंने अपना नाम लिख के साइन किया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये तो बड़ी पहले की बात करें ना, अब चूँकि अपडेट हो गई काफ़ी ज़्यादा, ऑनलाइन मौजूद है, आप उसी का हाई कोर्ट की वेबसाइट की स्क्रीनशॉट लें, साथ लगा दें। लिंक के साथ में। अच्छा, एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी आपको जब जाएंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग एंड सॉरी टू से, आप बड़ी मेहनत करके भी जाएंगे, 20 जजमेंटें भी लेके जाएंगे, और जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें एक का भी हवाला नहीं होगा। क्यों जिशान साहब? ठीक है, उसके डिफरेंट एक्सक्यूजेज हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो उस पर आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, ये सोचता आपके खिलाफ हो, लेकिन जो विजडम, जो नॉलेज आपने गेन कर ली, क्या वो आपसे छीन सकेगा? अगले केस में काम आ जाएगी। और अब तो माशाल्लाह अच्छे अच्छे सीनियर भी कानून नहीं पढ़ते, और मैं दोबारा अप्रिशिएट करूँगा ज़िशान को कि दे हैव ऑलवेज बीन कंसर्न्ड कि पढ़ता कोई नहीं है। और आप ये बताएं कि लड़ाई इसी बात की होती है। अच्छा, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, आप उसमें जाएं, उसमें एक लिंक है जजमेंट सर्च, एक है लेटेस्ट जजमेंट, वो तो जो आप, एक है जजमेंट सर्च। बाज़ औक़ात आप उसमें वो कहता है कि कीवर्ड दें, अगर आप वो कीवर्ड दें तो आप
विद इन फ्यू सेकेंड रेलिवेंट जजमेंट पे भी पहुंच सकते हैं। वो हर वक्त अप्लाई नहीं होता, डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं इसमें। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, आप इसको खोलें, अभी कल एक जजमेंट अपलोड हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कि मुल्ज़म का बयान हो सकता है नहीं हो सकता। सेम इज़ द सिचुएशन विद सिंध हाई कोर्ट। आप टीवी पे सुनते हैं कि जी सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया, ठीक है, तो जो एंकर ने कहा है, जो न्यूज़ ने कहा है, उस पर नहीं जाना आपने। गो टू द वेबसाइट ऑफ सिंध हाई कोर्ट, ओपन द जजमेंट एंड रीड इट, तो आप उसमें बेटर पोजीशन में। और अब ये देखिए ये सारी फ्री अवेलेबल है, व्हाई यू नीड टू पे। पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट, अदर लिंक्स हैं, ये इस पे ज़रा वर्क करिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट, इस पे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आपको चेक करना है कैबिनेट कौन है, कैबिनेट मेंबर कौन है, पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। नीचे फाइनेंस गवर्नमेंट पाकिस्तान है, आपने देखा जी बजट आ गया है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट आ गया, आपको कोई बजट का डॉक्यूमेंट चाहिए, आप चाहे कि यार बजट आया है तो इसमें क्या ये टैक्स लगा है या ये कोई सब्सिडी मिली है, अगर सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो क्या ये सैलरी बढ़ी है, पेंशन में कोई चेंज आई है। गो टू फाइनेंस डिपार्टमेंट वेबसाइट, वहाँ पे बजट पड़ा हुआ है, आप उसको खोलें। अब जब तक नेट आएगा हम एक आधा एग्जांपल देख लेंगे। अब ये देखें फाइनेंस डिवीजन की खुली वेबसाइट, ये सबसे ऊपर बजट डॉक्यूमेंट आ रहा है। आपको किसी ने मना तो नहीं किया, अब किसी से पूछते रहे यार बजट पे क्या है, ये हुआ है कि नहीं हुआ, और ये सारा कुछ आप अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। सेम इज द सिचुएशन, ये डिफरेंट लॉ साइट्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, कैबिनेट डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन है। अच्छा ये ज़रा बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान कोड, पंजाब कोड, अब पाकिस्तान कोड में तमाम फेडरल लॉज पड़े हुए और पंजाब कोड में तमाम प्रोविंशियल लॉज पड़े हुए हैं। अगर आपने लेटेस्ट लॉ देखना है तो यहाँ पे जाए। अच्छा जब नेट चल रहा है तो हम थोड़ा सा बेनिफिट लेंगे उससे। ये देखें, आप देखें तमाम आपके लॉज इसमें मौजूद हैं, जस्ट फाइंड इट। और ये हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में। इसी तरह पंजाब कोड है, इसमें तमाम पंजाब के लॉज शामिल हैं। आपको नहीं मिल रहा, कुछ एक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, सपोज कोई आ गया, आपके पास बुक नहीं है, पार्टीशन एक्ट है, रेंट है, फैमिली वट एवर इट इज़, CPC है, CRPC है, पंजाब कोड पे जाएं आपको लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल असेंबली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब प्रैक्टिकली होता है अगर किसी को FBR का नोटिफिकेशन चाहिए ना, कोई सर्कुलर चाहिए, तो किसी को कहेंगे यार मुझे FBR से निकलवा दो, ये कर दें वो कर दें, क्या ज़रूरत है किसी को। FBR की वेबसाइट पे जाएं, उसके सारे टैब्स चेक करें, कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको चीज़। अब फ्री ऑनलाइन इंटरनेशनल सोर्सेज, अभी तक तो ये जितने पीछे स्लाइड गुजरी है ना, ये सब लोकल हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी। अब इंटरनेशनल सोर्सेज भी फ्री हैं। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट टू माई व्यू, बेली। हम सारे पंजाब से हैं। जिशान साहब व्हाट डू यू मीन बाय बेली? वो मेरा बेली है। वो मेरा बेली है, ही इज़ माई फ्रेंड, ही कैन हेल्प यू इन द केस ऑफ नीड। उन्होंने तो अपना ब्रिटिश के हवाले से रखा ना, बी वो ब्रिटिश एंड आयरिश लीगल इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन मैंने आपको पंजाबी में इसलिए कहा बेली ताकि यू रिमेंबर इट। अच्छा इसमें जो है लकीली जब तक नेट है मैं इसको ज़रूर ऑपरेट करूँगा। अब ये देखिए, इसमें पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क की जजमेंट उठा के देख, पूरी दुनिया की। पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं, लेकिन दुख के साथ कुछ चीज़ें कहनी पड़ेंगी। ये आप देखें, हम आएंगे, ये आप खुद पढ़ेंगे ना सारा। ये देखें, हम एशिया पे आए,
एशिया पे आके इस तमाम एशियन कंट्रीज़ के फ्लैग बने हुए हैं। अब हम जाते हैं पाकिस्तान पे। अब हम जाएंगे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे। अब ये देखें, हमारे पास 2002 से 2011 तक की जजमेंट्स हैं। देख लिया आप सबने, 2002 से 2011, ओनली फॉर 9 years. Let's go back. Come to India. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 से 2023 तक। आप इंडियन जजमेंट ढूंढते हैं ना। अच्छा, बात का ठीक है, हमारे हाई कोर्ट में तो बहुत यूज होती है। इंडिया में जो प्रॉपोजिशन हमारी अब पैदा हुई है, उन्होंने 20-25 साल पहले सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि बेशुमार हाई कोर्ट्स हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट है। और आप ये देखें कि हमारे पास, और देखें मोर और लेस हमारे सेम लॉज हैं। विजडम तो डेवलप हो गई है ना। प्रेसिडेंट तो है, यू कैन आर्गू, यू कैन परसुएड। कोर्ट नहीं आपके स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक की कोई नहीं इंडियन जजमेंट को आपको मानेगी, लेकिन आपको आर्गूमेंट तो मिलेगा कि सर इस प्रोविजन की विजडम ये है, दीज आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब ये देखें 75 से लेकर 23 तक 73 साल का डाटा है और फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपने जिक्र किया ना पाकिस्तान का, तो आप चाहें तो फ्रेंच जजमेंट पढ़ लें और ये आपको ऑप्शन देगी कि आपने फ्रेंच में पढ़नी है कि इंग्लिश में पढ़नी है। जापानीज जजमेंट पढ़ लें, मतलब जैसे बात को मीडिया में आता है जी, सपोज कर लें कि यूके कोर्ट ने या जापान कोर्ट ने ये फैसला कर दिया जी, लॉ चेंज कर दिया। सुनी सुनाई बात है ना। गो टू दिस वेबसाइट, वो जजमेंट पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी की बात थी। यूजली हम अफ्रीकन कंट्रीज़ को ना फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा डाउन समझते हैं। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। यूरोप को अपने से अच्छा समझते हैं, अमेरिका को उससे अच्छा समझते हैं, और अफ्रीका को हम समझते हैं कि ये हमें कमी कमीन टाइप लोग हैं। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे ही है ना जनरल परसेप्शन। सी Constitutional Court of South Africa and the judgments 1995 to 2023, 2023 तक। और अब हम 23 में आएंगे। जनवरी से लेकर अगस्त, आज 5 अगस्त है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका ने परसों जजमेंट दी है, 2 अगस्त को दी है, वो भी इस बेली की वेबसाइट पे है। और हमारी जो है 2011 के बाद तक की नहीं है। इट डज नॉट मीन कि हमारी कोर्ट्स काम नहीं कर रही हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे फैसले कर रही है। तो इसलिए जो है ये एक वेबसाइट की बात थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एज ए यंगर, आप छोटे बहन भाई हैं, ये जो पिछले दिनों सुओ मोटो चले, सुप्रीम कोर्ट चले, एक बड़ा ना क्रिटिसाइज हुआ जी, रात 12 बजे अदालतें खुल गई। अगर एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ आप उस सुओ मोटो का पहला ऑर्डर पढ़ें, तो टू माई हम्बल व्यू एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ सही करें। उन्होंने एक 2009 की जजमेंट पे एक ऑर्डर पास किया कि नो इंस्टीट्यूशन विल टेक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। तो क्या क्या अगेंस्ट लॉ? नो इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ऑल इंस्टीट्यूशन, no institution shall take extra constitutional measure। अब मीडिया में क्रिटिसाइज, पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिटिसाइज, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारा काम है हम उसको पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, और जब भी हम उसको लीगली आर्ग्यू करें तो सिर्फ सुनी सुनाई बात पे ना करें। बेली के बाद इंडियन कानून, इंडियन कानून के बाद इंडियन कानून में भी इंडियन जजमेंट्स हैं। आई एम अफ्रेड कि नेट ना ख़त्म हो जाए, टाइम भी ख़त्म हो रहा है। इस पर एक लेटेस्ट लॉ है, ये वाले देखिएगा। अगेन दैट इज इंडियन जजमेंट। अब इस पे आप देखें, ये हम देख रहे हैं उनके बेयर एक्ट जैसे हमारे हैं, उनके भी हैं।
ये लिखा हुआ हिंदी एक्ट्स। अब ये देखें ना, ये नेट का थोड़ा, अच्छा अब ये देखें, सपोज हम पहला लॉ देखते हैं कि आपने उनकी लॉ साइट की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनकी जजमेंट्स हैं, लॉज हैं, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाह रहे हैं। अब ये देखें, वो उनकी लैंग्वेज में भी जजमेंट है, ये देखें उनके लॉज हैं, और ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ना। तो ये सारे फ्री सोर्सेज है ना, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। फाइंड लॉ, या फिर टू टाइम थोड़ा गूगल स्कॉलर पे आपको तमाम अमेरिका की जजमेंट्स मिलेंगे, लेटेस्ट से लेटेस्ट मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। बेली का जो इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें क्या क्या है, साइटेशंस है। आई वुड प्रेफर, चूँकि टाइम थोड़ा है, कोर्स तो बहुत लंबा हमारा रिसर्च का होता है, तो आप ये चीज़ें नोट करें, अपने मोबाइल पे खुद ट्राई करें। फाइंड लॉ जो है, जस्टिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना मटीरियल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, बुक सर्च एंड आर्टिकल सर्च। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग बुक्स से दूर हो गए। समटाइम्स होता है कि हो सकता है कोई जजमेंट उस पर ना आई हो, केस लॉ डेवलप ही ना हो, तो आपने अपना केस तो बिल्डअप करना है ना। कोई नई प्रपोजिशन आ गई पहली दफ़ा, तो आप उस पर बुक्स देखें, आर्टिकल देखें, कोर्ट को कहें इस बुक्स में ये है, एक इंटरनेशनल ऑथर ने ये कहा है। ये ई बुक्स के लिंक्स हैं, ये बेशुमार बुक लिंक्स हैं, लाइब्रेरीज़ के लिंक्स हैं, और ये सारे फ्री हैं। अब कहेंगे तो मैं ज़ीशान साहब से ये शेयर कर लूँगा, मैं शेयर कर लूँगा। इस पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक करें, आपको बेशुमार बुक्स की वैरायटी मिलेगी, प्रोवाइडेड आप पढ़ना चाहें तो। आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, हम डिक्शनरी भी कंसल्ट करते हैं, इंसाइक्लोपीडिया भी देखते हैं। सिर्फ ये है कि ये नहीं कि केस लॉ निकाला तो बस डेट्स ऑल। एज ए जज की बात कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू राइट ए क्वालिटी जजमेंट, आपको केस लॉ भी चाहिए, आर्टिकल का हवाला भी चाहिए, किसी अच्छी बुक का हवाला भी चाहिए। वही मैंने कहा, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो उसमें बुक्स का हवाला होता है, तो वो बुक भी ज़रूर पढ़ें। इसी तरह आप वकील हैं तो आप पे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप रेफ़र कर सकते हैं कि दिस इज़ द बुक। कोई इंडोर्स करे ना करे, आपके इल्म में तो इजाफा होगा ना। एंड डेफिनेटली व्हेन यू मेक इट योर प्रैक्टिस, तो जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको इतना अप्रिशिएट किया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ डिक्शनरी, वही हम बात करते हैं। समटाइम्स हमें नहीं मिल रहा लॉ, प्रेसिडेंट नहीं है, तो हमने कहीं से तो स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डिक्शनरी क्या कहती है, फिर उसको हम डेवलप करते जाएंगे थ्रू आर्टिकल, थ्रू बुक्स, इंसाइक्लोपीडिया। ये डिक्शनरी से लिंक्स मैं इनसे शेयर कर लूँगा। कंक्लूजन, क्योंकि कितना टाइम हो गया, 3:15 क्योंकि अच्छा, टाइम मैनेजमेंट इज़ आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको ना क्या ना घोट के नहीं पिला सकता। ये लिंक्स शेयर हो जाएंगे, आप इस पे खुद वर्क करें। तो जब आप खुद करेंगे तो सेल्फ डन इज़ वेल डन। उर्दू में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, आप काज महाकाज, ठीक है। कंक्लूजन कोई पढ़ेगा, एनीबॉडी? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज सेशन? आप पढ़े conclusion पढ़े। ऊंची सारी पढ़े, एवरीबॉडी शुड लिसन। ऊंची आवाज में। ऊंची, बी कॉन्फिडेंट, यू आर गोइंग टू बी लॉयर। कम भाषा चले। आप पढ़ लें, कोई पढ़ लें, ऊंची पढ़े। Law is not a static subject and no one can be put lawyer or judge
talked saturation. Saturation in the field of work. There is huge vacuum of competence and professionalism. ये जो है ना, there is huge vacuum of competence and professionalism. I wrote it on the basis of my 19 years experience as a judicial officer, and I am sure that Zishan will agree with me. क्यों? पढ़ना नहीं है, ब्रीफ नहीं पढ़ना, इवन कई दफ़ा अच्छा जो प्रैक्टिस होते हैं, आया क्लाइंट, उस वक्त क्लाइंट बहुत अच्छा लगता है जब नया नया आता है, क्योंकि उसने फ़ीस देनी होती है। फिर स्टेनो ने ड्राफ्टिंग कर दी, उसके बाद परसों ही नहीं करना। इवन समटाइम्स अपने ब्रीफ का नहीं पता होता। तो अभी भी बहुत जगह है। आपने जब लॉ किया होगा, फैमिली में दाएं बाएं बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, यार तू फटा लाना है, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस हो, ऐसे ही है ना, तू फटा लाना है। अभी आप ये निकल के देखें, अगर अब निकलेंगे तो आपको थोड़ी सी यू माइट बी फीलिंग डिसअपॉइंटमेंट के किस तरह टूटे फटे पड़े, कुर्सियाँ पड़े। इज इट सो? लेकिन कोई बात नहीं। फर्स्ट जनरेशन जो है ना, फर्स्ट जनरेशन लाया कि हमने बड़ा करना पड़ता है। देखिए, आई एम आल्सो फर्स्ट लॉ ग्रेजुएट ऑफ माई फैमिली, ठीक है। फर्स्ट को तो ज़्यादा एंथुसियाज्म होना चाहिए, उसको खुद करना है। ये कह रहा हूँ वो जंग करके आते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अब जंग करके आया तो बहुत अच्छा प्रोफेशन, प्रोवाइडेड के हो यू कैरी इट। अब रोज़ अदालतों में तमाशे हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। आपने डिफरेंट, हर एक के डिफरेंट आइडियल्स होंगे, क्योंकि मैं अब नाम नहीं किसी का लेना चाहता। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट, top is always vacant. And thank you very much